Praise the Lord, church. Praise the Lord. आप सभी को जय मसीह की. And we bring you greetings in the name of Lord Jesus Christ. Whenever we pray or whenever we worship God, we come more closer to the Lord. We understand Him much more better. Before we start our worship, let us look upon the word from Isaiah chapter 41 verse 10. It clearly says, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand." Hallelujah. Hallelujah. We are protected. We are secured with in His hand. Hallelujah. Let's worship the living God. Before we start, let us pray. Let us bow down before the living God and say, Heavenly Father, we want to thank you once again for this beautiful time that you have given us. We want to give all glory, honor, and praise to you, Lord Jesus. As we, brothers and sisters, we come together, as we worship you, Master. Let it happen, Father God, the one who are watching. Father God, let it happen, Father God. Let the anointing reach them, Father God. Wherever they feel lack in their wisdom, lack in their finances, in the relationship, Father God, we pray. Let it happen, Father God. Let it be joined together, and Father God, once again, let it be renewed in the name of Jesus. Let the Spirit flow through this worship, O Lord God. Lord, I want to thank you for every small little thing that you have done in our life. In your precious name I ask and pray. Amen. तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं. Let us all sing together. तेरे मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं. ओ यीशुआ, 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 करूँ आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा. Yeshua, everybody. Yeshua, Yeshua, आराधना. हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा. खाली हूँ, भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे. कुछ भी नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे. हो खाली हूँ, भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे. कुछ भी नहीं हूँ बिना तेरे. यीशुआ, यीशुआ, करूँ आराधना, करूँ आराधना. हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा. तो यीशुआ,
यीशुआ यीशुआ करूं आराधना हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा Hallelujah. Oh Jesus, thank you, our Father. Oh, we praise you, my King. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ मैं तेरे हुजूर सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ मैं तेरे हुजूर मैं तेरे हुजूर यीशुआ यीशुआ करूं आराधना हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा यीशुआ यीशुआ करूं आराधना हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा I'm nothing without you, nothing without you, Jesus. I'm nothing without you, nothing without you, my Lord. Let's sing together and let's confess. I'm nothing without you, nothing without you, Jesus. I'm nothing without you, nothing without you, my Lord. Let's sing together. I'm nothing without you. Together. I'm nothing without you, nothing without you, Jesus. Oh, Jesus. I'm nothing without you, nothing without you, my Lord. Yeshua, Yeshua, करूं आराधना हाथों को अपने उठाकर यीशुआ यीशुआ करूं आराधना हाथों को अपने उठाकर Thank you, Jesus. Hallelujah.
Father God, we lift our hands unto you, Father God, and say, thank you, my King, thank you, my Jesus. तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था और तू ही अब है. Hallelujah. Let's sing that song. तू ही रब है, तू ही सब है. तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है. तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही तो सबसे अलग है. हे, करते हैं तुझको हम सलाम, सबसे ऊंचा है वो नाम. करते हैं तुझको हम प्रणाम, सबसे ऊंचा है वो नाम. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम. ला 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 देखा है हमने लाखों ऐसे, पर मेरे जैसा कोई नहीं रे. ऐसे वैसे तो है कितने, पर दीवाने हम तो है तेरे. तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही है मेरा बस ही एक खुदा. ला 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 ला. आए हैं हम इस शहर में यीशु का नाम ऊंचा उठाने. हम करेंगे बल्ले बल्ले और बोलेंगे आवाज उठा के. तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही है मेरा बस ही एक खुदा. बोलो नाम यीशु, नाम यीशु, नाम. 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 तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है. तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही तो सबसे अलग है. हे, करते हैं तुझको हम सलाम, सबसे ऊंचा है वो नाम. करते हम प्रणाम, सबसे ऊंचा है वो नाम. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम. ला 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 ला. La 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 la. Ho 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 ho. बोलो यीशु मसीह की जय. हालेलुया. Hallelujah. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर वो हमारा ऊंचा गढ़ है. आइए हम गीत को गाएं. जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है. वो यहोवा हम
हमारे संग संग हालेलुया सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई ओ जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई वो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग वो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा सेनाओं का come on समुद्र को जिसने डुबागा जंगल से मार को निकाला ओ समुद्र को जिसने डुबागा जंगल से मार को निकाला जो वादे को करता है पूरा वो यहोवा हमारे संग जो वादों को करता है पूरा वो यहोवा संग सेनाओं का हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ सेनाओं का यहोवा हमारे याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा आराधना करे आराधना उपकारों को उसके याद करे हाथों को उठाकर धन्यवाद करे ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे आराधना करे आराधना उपकारों को उसके याद करे हाथों को उठाकर धन्यवाद करे ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे हालेलुया 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 आइए ताली बजाए लाजर को जिसने जिलाया सक्कई को जिसने बचाया लाजर को जिसने जिलाया सक्कई को जिसने बचाया जिसके लिए सब कुछ संभव वो यहोवा हमारे संग संग है जिसके लिए सब कुछ संभव वो यहोवा हालेलुया सेनाओं का यहोवा हमारे का यहोवा हमारे संग संग याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी है यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में सुनी la la la
सुनी है सुनी, यीशु मसीह है, तेरे बिना जिंदगी है, यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी है न कोई खुशी। है ला 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 ओ ओ हे 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 la 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 oh hallelujah. Let's give a big clap to the Lord. He deserves it. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. We praise you. We worship you, Lord God. Let's worship the Lord. हालेलुया। आइए हम जैसे आराधना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर की ओर निहारते हैं। हमारा परमेश्वर अति प्रिय परमेश्वर है। आइए हम उसकी आराधना करें। ये जो समय परमेश्वर ने हमें दिया है, इसे बहुमूल्य जानकर हम उसकी आराधना करें। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें आराधना का मौका नहीं मिला है, लेकिन हमें वो मिला है। आइए धन्यवाद के साथ कि तू परमेश्वर, तू हमारा दाता है, इसलिए हम तेरी आराधना करते हैं। आइए हम सब परमेश्वर की आराधना करें।
Jesus. आराधना You are great. है यीशु दाता मेरे खुदा Great and mighty करता is हूँ He. स्तुति आराधना घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी Jesus. Glory, glory, glory unto से प्रेम करूं मैं केवल तुझसे प्रेम करूं मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं तेरे ही मार्गों पर चलूं तेरी ही महिमा मैं गाऊं तेरे ही आगे झुकूं यीशु और पीछे ना तेरे ही मार्गों पर चलूं तेरी ही महिमा मैं गाऊं तेरे ही सामने झुकूं और पीछे ना मैं केवल तुझसे प्रेम करूं 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 और पीछे ना हटूं तेरी ही स्तुति मैं करूं तेरी ही भय मैं मानूं तेरे ही और मैं देखूं यीशु और पीछे ना हटूं तेरी ही स्तुति मैं करूं तेरी ही स्तुति मैं करूं तेरा ही भय मैं मानूं तेरे ही और मैं देखूं यीशु और पीछे ना मैं केवल तुझसे प्रेम करूं 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 और पीछे ना हटूं और पीछे ना हटूं और पीछे ना हटूं स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए हमारे बीच हो हम सबको आप देख रहे हो हमारे हृदय को आप जांच रहे हो पिता हम धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी हमारे प्रेजेंट वर्शिप को आपने पिता परमेश्वर एक्सेप्ट किया इसलिए हम धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हर एक जो व्यक्ति यहाँ पे आपके लिए स्तुति आराधना कर रहा है और पिता परमेश्वर खास करके पिता परमेश्वर जो वचन आने वाला है होने दे पिता परमेश्वर उसमें छुपी हुई जो आशीष है वो आज हम सभी को मिले पिता परमेश्वर हम
हम सभी को पिता परमेश्वर सप्ताह भर चलाने वाली एक आपकी सामर्थ हमारे साथ रहे, ऐसा तो होने दे। हम सभी को पिता परमेश्वर, खास करके पास्टर को, उनके वचनों को आपके हवाले कर देते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन, आमीन। Praise the Lord, church. प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। Nice to be with you on this Sunday morning. और ये अच्छी बात है कि रविवार की सुबह हम आपके साथ हैं। I hope so today you're going to enjoy God's word. मैं आशा रखता हूँ कि आज आप परमेश्वर के वचन का आनंद उठाएंगे। We are going to talk about life is journey. और आज हम बात करेंगे जीवन एक यात्रा के बारे And this is में। the part 1 of this series. और ये पहला भाग है इस सीरीज का। You might be wondering what's going on in your journey. और आप सोच रहे होंगे कि आपके जीवन की यात्रा में क्या हो रहा है। Where is my blessing? मेरी आशीष कहाँ है। Let me tell you, this series starts what you should have a question which you need to be answered by God. पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो भाग है वो शुरू होता है एक सवाल से जिसका उत्तर परमेश्वर देगा। We need to get track on God's plan in our life. और हमें परमेश्वर की योजना में रहना है हमारे जीवन के लिए जो है। Till now you might be living the journey. अब तक आप इस यात्रा को जी रहे होगे। Are you walking in faith and victory? क्या आप विश्वास और विजय में चल रहे Have you हो? set your eyes on the promises of God? क्या आपने अपनी दृष्टि जो है वो परमेश्वर के वादों पर रखी है? Have you said yes to Jesus Christ in the journey of your life? क्या आपने अपने जीवन की यात्रा में यीशु मसीह को हाँ कहा है? Have you left the past as Abraham left when God told him to leave? और क्या आपने अपने भूतकाल को छोड़ दिया जैसे अब्राहम ने अपने भूतकाल को छोड़ दिया जब परमेश्वर ने उससे बात की? I want to tell you today, मैं आपसे बात करना चाहता your हूँ decision आज determines your destiny. कि आपका निर्णय आपकी मंजिल को तय करेगा। Life is a journey and the beginning of the journey started when we were born. और जीवन एक यात्रा है और इसकी शुरुआत तब होती है जब हम पैदा होते हैं तो। Life is full of choices. और जीवन पूरा जो है चुनाव से भरा होता है। Everyone who is listening to us is heading somewhere. और हर एक व्यक्ति जो हमें सुन रहा है वो कहीं ना कहीं तो जा रहा है। At times we are not certain where our journey is taking us. और बहुत बार हमारे समय में हम जो है हमें पता नहीं होता हमारी यात्रा में कहाँ लेके जा रही होती Today you have है। to ask a question to your own self. आज आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है, Where I am heading? मैं कहाँ पर जा रहा हूँ? Is I am in the right direction? क्या मैं सही मार्ग पर हूँ? Do you know where you are going today? क्या आपको पता है आज आप कहाँ जा रहे हो? Do you know what are the consequences of your decision which you have taken? क्या आपको पता है आपका एक निर्णय लेने का क्या परिणाम होता है? Have you arrived to the destination or still you have to continue in the journey? क्या आपको पता है कि आप मंजिल के पास पहुंच गए हो या आपको अभी भी और यात्रा करनी है? Many people settle down on the way. और बहुत सारे लोग जो है वो रास्ते में ही अपना घर बसा लेते हैं। Let us understand, to reach the destination it will take time, it is a process. और आइए हम सीखे कि अपने यात्रा में जाने के लिए आपको समय लगेगा। And the process is full of up and down. और ये यात्रा जो है वो पूरा ऊपर नीचे से भरा हुआ है। The process is full of stops and start. और ये मार्ग जो है वो बहुत ही रुकावटों से भरा हुआ है। आप कभी रुकोगे, आप फिर चलोगे। Yes, the process is not always a fun part. और ये जो यात्रा है ये हमेशा जो है एक आनंद की चीज नहीं है। The process will make you to take right choices or wrong choices. और ये यात्रा जो है वो आपको सही चीजें चुनने को लेकर जाएगी और गलत भी चीजें चुनने को लेकर The जाएगी। decision which you are going to take today, और आज जो निर्णय आप लोगे, the choices which you are going to take और today आज जो चुनाव आप करोगे, will determine in your journey your physical and spiritual destiny. ये आपके जो है आपके शारीरिक और आपके आत्मिक मंजिल का निर्णय लेगा। Let me tell you, before we start the message, I want you to focus on specific few scriptures on God's word. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, संदेश को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप और हम जो है वो एक कुछ वचनों पर ध्यान दें। Let's turn our Bible to Job chapter 14 and verse 5. और आइए हम हमारे पवित्र शास्त्रों को खोले अय्यूब का अध्याय 14 अध्याय और 5वीं आयत। Job chapter 14 and verse 5. A person's days are determined
You have decreed the number of his month and have set limits he cannot exceed. मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है। Yes, many people do not understand this scripture. और बहुत सारे लोगों को ये वचन समझ नहीं आता है। Every person who is born on the earth, हर एक व्यक्ति जो इस धरती पर जन्मा जाता his है life is limited, is determined by God. और उसका जीवन जो है वो कुछ ही क्षणों का होता है और वो परमेश्वर ने पहले ही निर्णय कर लिया होता है कि वो कितने साल जिएगा। God has set a limit. और परमेश्वर ने एक जो है सीमा लगा दी है And the limit cannot be exceeded by और वो anyone. सीमा के ऊपर कोई नहीं जा सकता है। Let's go to the next scripture. और आइए हम दूसरे वचन के पास जाएं। Psalms 31 and verse 15. और भजन संहिता का 31वां अध्याय और My 15वां times वचन। are in your hand, O Lord, says David. और यहाँ पर दाऊद कहता है मेरे दिन तेरे हाथ में है। My times are in your hand. मेरे दिन तेरे हाथ में है। Deliver me from the hands of my enemy, from those who pursue me. तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। In your journey, you should understand that your time which you are going through is in God's hand. और आपके जीवन में आपको ये समझना है, आपकी यात्रा में आपको ये समझना है कि आपके दिन परमेश्वर के हाथ में है। David, when he was going through difficult times, he has written this psalm. और दाऊद जब एक मुश्किल समय से जा रहा था तब उसने ये भजन संहिता को लिखा। Let's go to the next scripture, Psalms 139, 14 to 16. और आइए हम अगले वचन के पास जाए। भजन संहिता का 139 और 14 और 15 वचन, 14-16। I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depth of the earth. Your eyes saw my unformed body, and all the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। Can you believe this? Before your body was formed, the eyes of the Lord was upon और you. क्या आप विश्वास कर सकते हो कि आपका शरीर बनने से पहले परमेश्वर की दृष्टि पहले से ही आप पर थी? Yes, everything about your life is written in your book, the psalmist says. और हर एक चीज आपकी जीवन के बारे में किताब में लिखी गई है। भजन संहिता लिखने वाला कहता He है says, I praise you because I am fearfully and wonderfully और वो made. कहता है मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। Nothing is hidden from God right from the inception. You came into the mother's womb till you have the last breath on the earth. और कुछ भी परमेश्वर से छिपा नहीं है। Let's go to the next scripture. और आइए हम अगले वचन की ओर देखें। Many people worry about the journey. बहुत सारे लोग जो है इस यात्रा में चिंता लेते हैं, This is चिंता what करते हैं बहुत। Jesus said in Matthew chapter 6 and verse 27. और ये यीशु मसीह कहता है मत्ती का 6वां अध्याय और 27वां वचन में, Can any one of you by worrying add a single hour to your life? और मत्ती का 6वां अध्याय और उसका 27 वचन, मैं तो तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? Yes, in your journey of life, if you are starting worrying, can you add anything to your life? This is what Jesus is saying. और यीशु मसीह कह रहा है आपके जीवन की यात्रा में अगर आप चिंता करना शुरू करते हो तो क्या आप अपने जीवन में कुछ चीजें बढ़ा सकते हो क्या? Let me tell you, beloved, मैं आपको बताना चाहता हूँ the प्रियो, Lord's word is very, very clear. परमेश्वर का वचन काफी निष्पक्ष These are है the foundation scripture which you and I need to focus on. और ये जो है ये नींव की वचने हैं जिनके ऊपर आपको और मुझे ध्यान देना है।
है, so that we can understand the life is a journey. ताकि हम ये समझ पाए कि जीवन एक यात्रा है। To understand what God is saying, we should focus on the scriptures. और परमेश्वर क्या कह रहा है ये समझने के लिए हमें इन वचनों पर ध्यान देना है। Let's turn our Bible to Jeremiah chapter 29 and verse 11. और आइए हम पवित्र शास्त्र को बोले यिर्मयाह का 29वां अध्याय This और is what 11वां the वचन। Jeremiah is saying, for I know the plans I have for you, the Lord says, declares the Lord, plan to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा मैं पूरा Do you करूंगा। believe what God? और क्या आप परमेश्वर पर विश्वास If you रखते हो? believe God, these scriptures are going to have a meaning upon your और life. अगर आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो ये वचनों का एक अर्थ होगा आपके जीवन के If you ऊपर। acknowledge the Creator, God in your life, yes, this scripture will have a greater impact upon your life. और सृष्टि के निर्माण करने वाला उस परमेश्वर को अगर आप जान लेते हो परमेश्वर होने के नाते अपने जीवन में, तो ये वचनों का एक अर्थ होगा आपके जीवन में। Earth and you did not come by chance. और धरती और आप जो है किसी इत्तेफाक से नहीं आए हो, You were created by God. और आप परमेश्वर के हाथों से रचे गए हुए You हो, were formed by और God. परमेश्वर ने आपको बनाया है। So you should understand when you are going in the journey that God has a plan for तो us. आपको ये समझना है कि जब हम यात्रा में जा रहे हैं तो परमेश्वर के पास एक योजना है हमारे लिए, And the plan is to prosper you and not to harm you. और ये योजना जो है, ये कल्पनाएं जो है, ये आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको सफलता देने के लिए, आपके हानि के लिए नहीं This है। plan is for your hope and for your future. और ये आपको एक आशा देने के लिए और आपको एक भविष्य देने के लिए है। Let me tell you one thought I want you to consider. मैं आपको बताना चाहता हूँ एक जो विचार मैं सोच रहा था। If you do not consider the scriptures right now, they will haunt you at the end of your journey. और अगर ये वचने आप अभी जो है लेकर नहीं चलोगे तो आपकी यात्रा की अंत में ये वचने जो है आपको एक डर के समान आपको डराएंगे। Today, whatever your journey is, today the message is do not stop. और आज जो भी आपका यात्रा है, आज का संदेश ये है कि आप रुके नहीं। You had no say when you were born. और आपके पास आपका कोई विचार नहीं होता जब आप पैदा होते हो तो। You had no say when you started the life journey. और आपका कोई नहीं सुनता है, आपका कोई विचार नहीं होता जब आप जीवन की यात्रा शुरू करते हो तो। You had no plans about the future when you came on the earth, weeks and months and years. आपकी भविष्य के लिए कोई योजना नहीं थी जब आप इस धरती पर आए। After you were born, nothing plan was there for you. और आप पैदा होने के बाद आपके लिए कोई योजना नहीं थी। I want to tell you, you have a very little control over your life and your journey. और आपके पास बहुत ही कम नियंत्रण है आपकी जीवन के ऊपर और आपकी यात्रा के ऊपर। You are loved by God. और आप परमेश्वर से प्रेम किए जाते हो। He knows you by your name. वो आपको आपके नाम से जानता You can है, have a hope and a future. और आपके पास एक आशा हो सकती है और एक भविष्य हो सकता है। Let me tell you, as an infant when you came, you were not knowing how your journey is going to be. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बच्चे होने के नाते जब आप आए तब आपको नहीं पता था कि आप कैसे होगे और क्या आपकी यात्रा होगी। Let me tell you, beloved, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, Jesus spoke about a man, यीशु मसीह ने एक व्यक्ति के बारे में बात की and I am going to talk about that man today. और उस व्यक्ति के बारे में आज मैं बात करूंगा। He was planning for his future, और वो अपने जो है भविष्य के बारे में योजना कर रहा था। and when he was planning for his future, he never kept any room for God. और जब वो कल्पनाएं कर रहा था अपने भविष्य के बारे में, उसने परमेश्वर के लिए एक भी जगह नहीं रखी। There are many people in this world. और बहुत सारे लोग हैं इस संसार में They plan for their future. जो
अपने भविष्य के बारे में कल्पनाएं और But there is योजना no करते हैं, room for God in their planning. परंतु परमेश्वर के लिए कोई भी जगह नहीं छोड़ते वो उनकी कल्पनाएं और They योजना are में, only planning physically. और वो सिर्फ शारीरिक रीति से कल्पनाएं करते हैं। They don't know that there is a spiritual impact in their journey. और वो ये नहीं जानते कि उनके यात्रा में एक जो है एक अलौकिक जो है सामर्थ्य है। Let's turn our Bible to Luke chapter 12 verse 18 to 21. और आइए हम पवित्र शास्त्र बोले लूका का 12 अध्याय और 18 This से man 21 said, वचन। "This is what I will do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store up my surplus grain. And I will say to myself, you have plenty of grain laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry." But God said to him, "You fool, this is very night. Your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? This is how it will be with whoever stores up things for themselves, but is not rich towards God." और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धन नहीं है। In the last week, one of the important businessmen left the earth. और पिछले हफ्ते एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसायी जो है उसने धरती को छोड़ दिया। He was in Mercedes Benz. और वो मर्सिडीज बेंज में था। But still when he met with an accident, he had to leave the earth. पर फिर भी जब एक घटना घटी तो उसको संसार छोड़ना पड़ा। We had seen in the news so much wealth he had. और हमने न्यूज़ पे देखा था उसके पास कितनी धन दौलत थी। Bible says, पवित्र शास्त्र you कहता can't है control your journey. कि आप अपने जीवन की यात्रा के नियंत्रण में नहीं हो सकते Your हो। life is in God's hand. आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में है। Every person is on physical and spiritual journey, even if they choose not to acknowledge or believe it. और हर एक व्यक्ति एक शारीरिक और एक आत्मिक जो है यात्रा कर रहा है। अगर वो इस पर विश्वास नहीं भी करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कर I रहे still हैं। remember when the Kuwait war took place, so many Indians who were abroad, they had to leave everything there and they had to come back to India. Every property, everything which they had, whatever they had made, they have to leave everything. They came back to India. Things were very difficult in their journey. और मुझे अभी भी याद है जब कुवैत वॉर हुआ था तो मुझे याद है जितने भी भारतीय लोग थे वहां पर, उनकी जितनी भी संपत्ति थी, जितना भी धन दौलत उन्होंने कमाया था, उनको वो सब छोड़ के वापस भारत आना पड़ा। I would like to give you a recent example. Our children who had gone from India to do their MBBS in Ukraine, when there was a war taking place between Russia and Ukraine, they had to leave Ukraine and they have to come to India. Their future has become dark. और मैं एक और उदाहरण देता हूँ। हमारे जितने भी भारतीय बच्चे थे जो यूक्रेन गए थे MBBS करने के लिए, उनको वहां से, और जब एक रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चालू हुआ तो उनको वहां से निकलना पड़ा और फिर भारत में आना पड़ा। Let me tell you, when this pandemic came, many people lost their job. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये महामारी आई तब बहुत सारे लोगों ने अपने जो है नौकरी खो दिए। Life gives you a warning many times. और जीवन आपको एक चेतावनी देता है बहुत बार। Many times without a warning, change can take और place. चेतावनी के बिना बहुत बार चीजें बदल सकती है। An accident can change the destiny. और एक अपघात आपकी पूरी मंजिल को बदल सकता I है। remember a rich man मैं एक धनवान व्यक्ति को याद करता who हूँ has a big business. जिसका एक बहुत बड़ा व्यवसाय था। Only one son he has. एक ही बेटा था उसका।
उसका, He got a paralytic stroke. और उसको जो है एक पैरालिटिक स्ट्रोक आ गया, He went into coma. वो कोमा में चला गया, And the church was praying for him. और कलीसिया प्रार्थना कर रही थी उसके Today he लिए। has come home, but he cannot speak properly. और आज वो घर आ गया पर वो बोल नहीं सकता सही Today he से। has come home, but he cannot walk. आज वो घर आ गया पर वो चल नहीं सकता। One moment, life can change. और एक क्षण में जीवन बदल जाता है। The path you start on may not be the path you will follow all the way of your और life. जिस रास्ते पर आप शुरुआत करते हो ये वही रास्ता नहीं होगा जो आपको पूरे जीवन भर इसी पे चलना होगा। The path you start on may not be the path where you will end. और जिस रास्ते पर आप शुरुआत करते हो ये वही रास्ता नहीं होगा जो आपको जहाँ पर आपको अंत भी करना होगा। Can you know, Bible says you do not know your future, neither you can talk about tomorrow, neither we can talk about 1 hour later. क्या आपको पता है, पवित्र शास्त्र कहता है कि आप अपने भविष्य के बारे में नहीं जानते हो। आप 1 घंटे बाद के बारे में नहीं बात कर सकते, 1 साल बाद के बारे में भी नहीं बात कर सकते। Life is like a grass, anytime it can wither. और जीवन जो है वो झाड़ों के समान है, वो कभी भी निकल घास के समान है, कभी भी निकल सकता है। Let me tell you, many students are studying something, and when they go in their working profession, they are doing some other work. और बहुत सारे लोग बहुत सारे विद्यार्थी है वो कुछ पढ़ रहे हैं, और जब वो काम करने जाते हैं तो वो कुछ और काम करते हैं। Sometimes the life which you are having today may not be the choice which you wanted to be. और बहुत बार ऐसा होगा कि आपको जो जीवन चाहिए था वो आपकी चुनाव से आपको नहीं मिला। Life is full of hope and disappointments. और जीवन पूरा आशा और निराशा से भरा हुआ है। Life is full of joy and pain. और जीवन पूरा आनंद से भरा हुआ है और दर्द से भरा हुआ है। Life is full of ups and downs. और जीवन पूरा ऊपर और नीचे से भरा हुआ है। Life is full of question and answers. जीवन पूरे सवालों और जवाबों से भरा हुआ है। Life is full of faith and fear. और जीवन पूरा जो है विश्वास और डर से भरा हुआ है। Life is full of wins and losses. और जीवन पूरा जो है जीतने से और हारने से भरा हुआ Life है। is full of doubt and faith. और जीवन पूरा जो है वो शक करना और विश्वास से भरा हुआ है। I can tell you only one thing. मैं आपको सिर्फ एक चीज बता सकता हूँ, Promises are waiting for you to get fulfilled in your और life. वादे जो है वो तैयार है और वो रुके हुए आपके जीवन में जो है पूरा होने के लिए। Get back to God's plan which God has for you. और परमेश्वर की योजना पर आ जाए जो परमेश्वर ने योजना आपके लिए बनाई है। Correct your steps, correct your poor choices which you have done previously. और आपने जो गलत कदम उठाए हैं, आपने जो गलत चुनाव किए हैं उसको सही करो। Get back to your right path and seek the Lord. और सही मार्ग पर आओ और परमेश्वर की खोज करो। His plan for your life may not align with the personal desires or plans you have held for years together. और His plan for your life और उसकी योजना जो होगी आपकी जीवन के लिए may not align with your personal वो desires आपके इच्छाओं के अनुसार नहीं होगी, or the plan which you are holding for years together for your future. या ऐसी योजना जो आपने बनाई है और आप सालों तक उसको पकड़ के रखे हो। Listen what I am saying today. सुनो मैं आपको जो कहना चाहता हूँ, Life आज, journey is a process, there is no shortcut. और जीवन की यात्रा में जो है कोई शॉर्टकट नहीं है। Life is a process, there is no shortcut. People don't want to climb the stairs. People want lift today because they don't want pain to go to the higher stage. They want shortcuts to move at an elevated place. और जीवन जो है वो एक यात्रा है और यहाँ पर कोई भी छोटी रास्ता नहीं मिलेगी आपको। लोगों को आज के समय में जो है सीढ़ियां नहीं चढ़नी है, हर इंसान को लिफ्ट में जाना है। Yes, because climbing the stairs is a painful job. क्योंकि सीढ़ियां चढ़ना मेहनत का काम है। Shortcuts are very, very dangerous. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो छोटे रास्ते और जो शॉर्टकट्स है वो बहुत ही
जो खतरनाक होते हैं। Those who take shortcuts try to help God in their journey. और जो लोग शॉर्टकट्स या छोटे रास्ते लेते हैं वो परमेश्वर को मदद करना चाहते हैं उनकी Yes, God यात्रा wants you to में। go there. परमेश्वर चाहता है कि आप वहां पर जाओ, But God has a time for you. परंतु परमेश्वर के पास एक समय है आपके लिए। I will tell you, God promised one man in the Bible, his name was Abraham. मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने एक वादा दिया एक व्यक्ति को पवित्र शास्त्र के अंदर, उस व्यक्ति का नाम अब्राहम था। He said, I will make you the father of the nations. उसने कहा कि मैं तुम्हें राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। He took a shortcut and messed up the entire line. और उसने एक शॉर्टकट या एक छोटा रास्ता लेने की कोशिश की और अपने जीवन को जो है वो समस्या में डाल दिया। Till today, this mess cannot be controlled. और आज तक ये जो उसने अपने जीवन को हड़बड़ी में डाल दिया है, आज तक उसे जो है वो नियंत्रण में नहीं ला पाया। पूरी दुनिया उसको नियंत्रण में नहीं ला सकती, ऐसा मैस उसने खड़ा कर दिया। वो हमारे दादा परदादा अब्राहम हैं, वो उनको परमेश्वर ने कहा मैं तुझे जाति जातियों का पिता बनाऊंगा। उसने क्या किया, परमेश्वर को मदद करने की कोशिश की और उसने अपने ही मेड सर्वेंट हगार के साथ रिश्ता बनाया। परमेश्वर ने सेरा के द्वारा अभिवचन का पुत्र बताया था, लेकिन उसने क्या किया, हगार के साथ रिश्ता रखा और बच्चा पैदा किया। उसका नाम उसने रख दिया इस्माइल। और बाइबल कहती है उसकी जो गलती है उस गलती को आज तक कोई सुधार न पाया। आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। मैं आशा रखता हूँ कि आप समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ। इस्माइल वाज नॉट द प्रॉमिस्ड चाइल्ड। इस्माइल जो है वो वादा किया हुआ बच्चा नहीं था। The child from Sarah's womb was a promised child according to the Bible. और जो बच्चा सारा के गर्भ से था वो वादा किया हुआ बच्चा था। Yes, Sarah was barren, that was true. और सारा जो थी वो बांझ स्त्री थी, ये सच था। Sarah was barren, that is a fact. और सारा जो थी वो बांझ स्त्री थी, ये एक सच है। When you are barren, there the role of God comes in. पर जहां पर आप बांझ हो वहां पर परमेश्वर आपके जीवन में आता है। When things are unfruitful, there God comes in. और पर जहां पर जो है चीजें जो है बिल्कुल भी फलदायक नहीं होती है, वहां पर परमेश्वर आता है। Have you acknowledged your wrong choices which you have taken in your life? क्या आपने जो है अपने जीवन में आपने जो गलत चीजें किए हैं, क्या आप उसे जानते हो? Have you decided to believe Jesus today? क्या आपने जो है निर्णय लिया है कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करोगे? Have you decided to believe and trust God? क्या आपने निर्णय लिया है कि आप परमेश्वर पर विश्वास करोगे? We will learn from this man's journey very shortly. और हम बहुत ही जल्द इस व्यक्ति के जीवन से सीखेंगे। Abraham's life. अब्राहम की जीवन से। Abraham's father was Terah. और अब्राहम का जो पिता था तेरा था। He was living with his father in Ur the Chaldean. That was the town they were living. और वो अपने पिता के साथ ऊर चैंडिलियन में रह रहा था। Terah, his father was also having a grandson called Lot with him. और तेरा जो उसका पिता था उसके पास उसका एक पोता था जो लूत था उसका नाम। His father had married Abraham and his wife was Sarai. और Terah married Abraham whose wife was Sarai. Sarah. तेरा मैरिड अब्राहम। Terah married his son Abraham and brought a wife called Sarah. और तेरा ने जो है अपने बेटे अब्राहम की शादी की और एक पत्नी लाया, उसका नाम था सेरा। और ये अब्राहम, सेरा और वो उसका पिताजी और लूत, ये पूरा एक परिवार था। परमेश्वर ने उनको ऊर चैंडलेन से कानान देश की ओर भेजा और वो सारे निकल पड़े। लेकिन पता नहीं अब्राहम की जो पिताजी थे तेरा, वो हरान नाम के एक जगह पर रुक गए और वो आगे नहीं बढ़े। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि आपको कानान देश की ओर जाना है, आपको पिता का घर छोड़ना है, आपको आगे जाना है। अब्राहम तो चला गया अपने पत्नी को लेकर, उसके साथ उसके परिवार में जो लूत था उसने भी ये निर्णय लिया कि मैं मेरे चाचा के साथ जाऊंगा, और अब्राहम के साथ लूत भी चल पड़ा। लेकिन उसके पिताजी जो तेरा थे वो वहीं पर रुक गए हरान में। बाइबल कहती है 205 साल के उम्र में हरान की मृत्यु हो गई, तेरा की मृत्यु हो गई हरान में। अब तेरा हरान में क्यों रुका? Nobody knows why
Terah stopped at Haran and never proceeded to Canaan land. और किसी को भी ये नहीं पता कि तेरा जो है वो हरान में क्यों रुका और कनान देश में क्यों नहीं गया। Bible says पवित्र शास्त्र कहता in है Genesis chapter 12, और उत्पत्ति का 12वां अध्याय God called Abraham परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया and he told him to take a step of faith once again. और उसने अब्राहम को कहा एक बार फिर विश्वास का कदम उठाने को। He had to go to the land which God had promised him. और उसको वो जो है जमीन पर जाना था जिसका वादा परमेश्वर ने उसको दिया था। Let me tell you, life is a journey, don't stop. मैं आपको बताना चाहता हूँ जीवन एक यात्रा है, रुके ना। Let me tell you, people have been added in your life by God. और लोग आपके जीवन में जो है परमेश्वर ने आपके जीवन में लोगों को डाला है। Don't stop रुके ना till God speaks to you. जब तक परमेश्वर आपसे बात नहीं करता। Terah made a mistake in his life stopping at Haran because that was not the place for which God had called this family और for. तेरा ने जो है वो एक जो है गलती कर दी थी हरान में रुककर। That was not the place which God had called for. और वो जगह नहीं थी जिसके लिए परमेश्वर ने उसको बुलाया था। The Lord said to Abraham परमेश्वर ने अब्राहम से कहा in Genesis chapter 12 verse 1 to 5, उत्पत्ति का 12 अध्याय और 1 से लेके 5वें वचन में go from your country, और अपने देश से जा, go your people and your father's household to the land I will show you. और अपने देश से निकल जा और अपने पिता के घर से निकल जा और मैं तुम्हें एक जमीन को दिखाऊंगा, वहां पर जा। I will make you into a great nation. मैं तुम्हें एक महान राष्ट्र में बनाऊंगा। I will bless you. मैं तुम्हें आशीष दूंगा। I will make your name great. मैं तुम्हारा नाम बड़ा करूंगा And you will be a blessing. और तुम एक आशीष रहोगे। I will bless those who bless you. मैं उनको आशीष दूंगा जो तुम्हें आशीष देते हैं। And whoever curses you, I will curse. And all people on the earth will be blessed through you. और जो तुम्हें श्रापित करते हैं मैं उन्हें श्राप दूंगा। Now God never told Abraham where to go. और परमेश्वर ने अब्राहम को कभी नहीं कहा कहाँ जाओ। God never told Abraham which way to go. परमेश्वर ने अब्राहम को रास्ता नहीं दिया जाने के लिए। God said, I have called you for a land. परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें एक जो है जमीन के लिए बुलाया है। I have called you for a country. और एक देश के लिए बुलाया है। Leave your country which you are living right now. जिस देश में अभी रह रहे हो उसको छोड़ दो। Leave your people, leave your father's और household. अपने पिता के घर को छोड़ दो, अपने लोगों को छोड़ दो। Let me tell you, if you leave something for God, you are there in the promise of God. और मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ छोड़ते हो तो आप परमेश्वर के वादे में हो। I want to tell you that many people are stuck with their past and with their household. और मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत सारे लोग जो है वो अपने भूतकाल को पकड़ के रखे हैं और अपने घर को पकड़ के रखे और उधर ही बैठे हैं। They don't want to leave. उनको छोड़ना नहीं है वो। Bible says God will speaking to you right now. पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर जो है वो अभी आपसे बात करेगा। God is speaking to many who are listening to God's voice, and God is saying, I will make you great nation. और परमेश्वर कहता है बहुत लोगों से बात कर रहा है और वो कहता है कि मैं तुम्हें एक बड़ी राष्ट्र बनाऊंगा। I will bless you, I will make your name great. मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हें बड़ा बनाऊंगा। You will be a blessing. One who blesses you shall be blessed. One who curses you shall be cursed. और मैं तुम्हें आशीष दूंगा, जो तुम्हें आशीष देता है वो आशीषित होगा और जो तुम्हें श्राप देता है वो श्रापित होगा। So Abraham decided to leave his father's household. इसलिए अब्राहम ने जो है वो ये निर्णय लिया कि वो अपने पिता के घर को छोड़ेगा। Abraham decided to follow the voice of God. और अब्राहम ने ये निर्णय लिया कि वो परमेश्वर की वाणी को सुनेगा और उसके पीछे चलेगा। When Abraham took a call, he was 75 years of और age. जब अब्राहम ने जो है एक निर्णय लिया तब वो 75 साल का था। He left Haran and he went away. और उसने हरान को छोड़ दिया और वो वहां से निकल गया। He took his wife, he took the nephew, Lot also came with him. और उसने अपने बच्चे और अपने नेफ्यू को भी ले लिया और उसके साथ। He never had children. और उसने अपने बीवी और उसने अपने नेफ्यू को ले लिया। And every person who was working with him, he took everyone and he started moving
ahead. हर एक व्यक्ति जो उसके साथ काम कर रहा था वो सबको लेके गया और आगे बढ़ने लग गया He set out for the Canaan land. और वो केनन देश में चला गया And he was moving in the journey. और वो इस यात्रा में आगे बढ़ रहा था Let me tell you, life is a journey. मैं आपको बताना चाहता हूँ जीवन एक यात्रा है Abraham undertook the journey to go to the Canaan land. और अब्राहम ने एक यात्रा ली कि वो केनन देश में जाए It was a physical journey and spiritual journey too. और वो एक शारीरिक यात्रा थी और एक आत्मिक यात्रा भी थी It is a physical journey and spiritual journey full of choices which you make. और ये एक शारीरिक यात्रा थी और एक आत्मिक यात्रा भी थी पूरा इन चुनावों पर था जो तुमने लिया Whether you take a right choice or wrong choice. अगर तुम सही चुनाव लेते हो या गलत चुनाव Whether you took a good choice or a bad choice. एक अच्छा चुनाव या बुरा चुनाव In the journey, it's the time to learn from in the journey that we trust and have faith in God. यात्रा में एक समय है सीखने का कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और विश्वास रखें It's time to learn the walk in God. और ये समय है ताकि हम सीखे परमेश्वर के साथ कैसे चलते हैं God told Abraham, leave everything और behind. परमेश्वर ने अब्राहम को कहा सब कुछ पीछे छोड़ दे Cut everything of your past, just go ahead. और हर एक जो है चीज भूतकाल की उसको छोड़ दे और आगे बढ़ I would like to testify about my own daughter. और मैं मेरे खुद की बेटी के बारे में गवाही देना चाहता हूँ When she said, Papa, I have to go into the foreign land to study, I was not convinced. और जब उसने कहा कि मुझे जो है परदेशी देश में जाकर पढ़ाई करनी है तो मैं माना नहीं Do you know why? Because I wanted her to live with me. क्योंकि मैं चाहता था कि वो मेरे साथ रहे But both of my daughters have left and gone. पर मेरे दोनों बेटियां मुझे छोड़कर चली I जा चुकी believe the हैं journey which they have taken, the Lord will bless them as they hear the voice of God. मैं आशा रखता हूँ कि जो भी यात्रा उन्होंने ली है परमेश्वर उन्हें आशीष देगा जैसे वो परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं They left behind everything what their father had. और उन्होंने हर एक चीज छोड़ दिया पीछे जो उनके पिता के पास था And they went ahead. और वो आगे बढ़ One day गए I saw my daughter when there was a heavy snowfall. She was standing at the bus stop waiting for the bus. और एक दिन मैंने मेरी बेटी को देखा बहुत बहुत ज्यादा जो है बर्फ गिर रही थी और वो बस स्टॉप पर खड़ी थी और वो बस के लिए रुकी थी And here the father had car. She never had to go through a bus. और यहाँ पर पिता के पास गाड़ी थी उसको कभी बस के थ्रू जाना नहीं पड़ा When I था was watching her video, when I was watching her, talking to her, I never knew why she took a decision like this. और मैं जब वो उससे बात कर रहा था वीडियो कॉल के थ्रू तो मुझे कभी ये नहीं समझा कि उसने ऐसा निर्णय क्यों लिया Let me tell you, beloved, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, sometimes physical journey may be difficult, but if you are in God's plan, your spiritual journey is strong and the end result is good. और कभी कभार जो है वो शारीरिक यात्रा जो है वो मुश्किल होती है पर अगर आप परमेश्वर की योजना में हो तो आपका अंतिम जो परिणाम होने वाला है वो अच्छा होने वाला है She was not knowing which place she is going to go. और उसको नहीं पता था कि वो किस जगह पर जाएगी She was not knowing where she is going to उसको stay. नहीं पता था वो कहाँ रहेगी The promise of God stands with you when you obey God's और word. परमेश्वर का वादा आपके साथ खड़े रहता है जब आप उसके वादे उसके वचन का आज्ञा पालन करते हो तो Abraham's roots were in Ur. That was the place where he and his father were from. और अब्राहम के जड़ थे वो ऊर से थे और वहां से ही उसका पिता और वो था His dad stopped at Haran, और उसका पिता जो है वो हरान में रुक गया but Abraham went ahead. पर अब्राहम आगे बढ़ गया In Genesis chapter 15 and verse 7, और उत्पत्ति का 15 अध्याय और 7वें वचन में this is what God says. ये परमेश्वर ने I कहा am the Lord who brought you out of Ur of the Chaldean to give you this land to take possession of it. तब उसने उससे कहा मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसादियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। In the journey, Abraham experienced famine. और इस यात्रा में अब्राम ने जो है वो अकाल का अनुभव लिया When he was traveling to Egypt, जब वो
मिस्र देश में जा रहा था। I don't know what might be going in the mind of Abraham. और मैं नहीं जानता कि क्या अब्राहम के मन में चल रहा होगा। Where is the blessing? Abraham might be thinking, God, you told me to go and I heard your voice and I'm in the journey. Then why this famine, O Lord? और अब्राहम सोच रहा होगा कि कहाँ पर आशीष है। उससे वो सोच रहा होगा कि परमेश्वर तूने मुझे कहा जाने के लिए, मैंने तेरी वाणी को सुना और मैं चला गया, लेकिन God, यहाँ पर have क्या I अकाल है? made mistake? Have I taken a wrong और choice? परमेश्वर क्या मैंने गलती कर दी है? क्या एक गलत चुनाव ले लिया है मैंने? Abraham believed God and trusted God. अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास रखा और भरोसा रखा। On the promise of God, Abraham believed और अब्राहम ने परमेश्वर के वादों पर विश्वास that रखा God will bless him and he will make him a great nation. कि परमेश्वर जो है वो उसे आशीष देगा और एक बड़ा राष्ट्र बनाएगा। Let me tell you, in the entire journey of Abraham never saw the promised और land. मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब्राहम के पूरे यात्रा में उसने कभी जो है वाचा के देश को नहीं देखा। But yes, the barren woman, Sarah, Abraham's wife, who is our great grandmother, definitely God blessed her with a son and his name was Isaac. पर हाँ, जो बांझ स्त्री थी सारा, जो अब्राहम की पत्नी थी, परमेश्वर ने उसे आशीष दिया और उनको एक पुत्र जन्म हुआ, वो इसहाक था। Today, Abraham is called the father of the nation. और आज अब्राहम को जो है वो राष्ट्रों का पिता करके बुलाया जाता Today, है। Abraham is called the father of our faith. और आज अब्राहम को हमारे विश्वास का पिता करके बुलाया जाता In the है। journey, you have to cut off ties of the past, which God doesn't want you to continue. और आपकी यात्रा में आपको जो है वो भूतकाल की चीजें जो है वो हटानी है, अगर आपको परमेश्वर की योजना में चलना है In the तो। journey, God wants you to depend upon Him totally. और आपकी यात्रा में परमेश्वर चाहता है कि वो आपके ऊपर, कि आप उसके ऊपर निर्भर रहे। How is your life journey going on? और कैसा आपका जीवन का यात्रा चल रहा है? Are you trusting Jesus Christ? क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास रख रहे Are you हो? depending upon Jesus क्या आप Christ? यीशु मसीह पर निर्भर हो? Are you walking as per God's क्या plan? आप क्या परमेश्वर की योजना के Are समान you चल able to रहे hear हो? voice of God? क्या आप परमेश्वर की वाणी को सुन रहे हो? Have you heard the call of God upon your क्या life? आपने परमेश्वर की बुलावट को अपने जीवन के ऊपर जो आई है सुना है? Have you left all the past sins behind and moving ahead? क्या आपने भूतकाल की चीजों को छोड़कर आगे बढ़े हो? Let me tell you, the first step which you need to take is the very difficult मैं step. आपको बताना चाहता हूँ, जो पहला कदम हमको लेना है वो बहुत ही मुश्किल कदम है। Yes, that is going to be a very difficult step and you need to have faith to take that step. और हाँ, ये बहुत ही मुश्किल कदम है और हमें विश्वास से कदम लेना है। Don't stop at Haran. और हरान पर ना रुके। God is telling you to move ahead. परमेश्वर आपको कह रहा है आगे बढ़ने के लिए। Haran is not the place for you. This is what God is हरान saying. आपके लिए वो जगह नहीं है, ये परमेश्वर कह रहा है। Abraham's father Terah made a mistake settling down at Haran. और अब्राहम के पिता तेरा ने एक गलती की, हरान में रुककर। Yes, Abraham continued. लेकिन अब्राहम आगे बढ़ा। Where you will be when your life's journey comes to an end. और कहाँ पर आप होगे जहाँ पर आपकी जीवन की यात्रा एक अंत पर आती है। I would like to tell you about another man in the New Testament called Paul. मैं आपको एक और व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ, नए करार में जो The one पौलुस who was है। persecuting the people who used to believe in Jesus Christ. और वो व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, उन लोगों के ऊपर अत्याचार करता था। And he was persecuting. One day Jesus met him in his journey. और एक बार वो लोगों पर अत्याचार कर रहा था और वो अपनी यात्रा में था और यीशु मसीह उसको मिले वहां पर। Bible says one meeting with Jesus Christ changed his entire journey of life. पवित्र शास्त्र कहता है कि उसकी जीवन में, उसकी यात्रा में उसकी एक मुलाकात यीशु मसीह से उसके पूरे जीवन को बदल देता है। Yes, he had gone through a lot of physical trouble, but his spiritual journey was very, very strong. हाँ, वो शारीरिक समस्या से गुजरा जा सकता है, परंतु उसकी जो आत्मिक जीवन थी वो काफी लंबी थी। Yes, Paul chose to believe the promises of God. और पौलुस ने ये चुनाव किया कि वो परमेश्वर के वादों पर विश्वास रखे। Receive the blessing of God and righteousness through Christ Jesus. और परमेश्वर के आशीष को पाए और परमेश्वर की धार्मिकता को पाए यीशु मसीह के द्वारा। With the last example, I'm going to close. और आखिरी उदाहरण से मैं अंत करूंगा। There was one more person called King Saul. और एक और व्यक्ति था जो राजा सौल था। And King Saul was being chosen by people of और Israel. राजा सौल जो था
राजा सॉल जो था उसने लोगों के इस्राएल के लोगों ने इस राजा को चुना था। He was very tall and hefty. काफी लंबा था और हट्टा He was कट्टा the था tallest in Israel, Bible says. और इस्राएल में सबसे लंबा था। He was looking like a king. God anointed Saul because people of Israel persistently demanded to Samuel that we want a king. और परमेश्वर ने सॉल का अभिषेक किया इसलिए क्योंकि इस्राएल के लोग बार बार सैमुएल को कह रहे थे कि हमें जो है एक राजा चाहिए। Yes, but Saul, when he became the king, he was a very, very humble man. और सॉल जो था जब वो राजा बना तो एक काफी जो है नम्र व्यक्ति था। But Bible says in the journey, because he wins certain battles, he became disobedient and stubborn. परंतु पवित्र शास्त्र कहता है कि उसकी यात्रा के अंदर क्योंकि वो कुछ जो है युद्ध जीत गया इसलिए वो काफी जो है स्टबन बन गया। जब सॉल ने यात्रा शुरू की बहुत ही नम्र था, जैसे जैसे वो युद्ध जीतने लगा ऐसे वैसे वो नम्र से घमंडी बन गया, जिद्दी बन गया। उसने प्रभु की बात सुनना बंद कर दी। वो उसने प्रभु की बातों को लाइटली लेने की शुरुआत की और जब जब वो गलती करता वो कभी माफी नहीं मांगता। वो कहता मेरी गलती नहीं है, दूसरों की गलती है। हमेशा उसने अपनी सारी गलती दूसरों पर डाली और इसी तरह से जब उसकी जर्नी में वह कंटिन्यू करते रहा, प्रभु ने सॉल को राजा बोल के ठुकरा दिया। God rejected Saul as a king and replaced Saul by David. परमेश्वर ने जो है वो सॉल को जो है राजा बोल के ठुकरा दिया और दाऊद को बना दिया राजा। Yes, because Saul was blaming everyone. क्योंकि सॉल जो था वो सब पर दोष लगा रहा था। Saul never regretted anything for what he did. सॉल ने कभी जो है ऐसा पश्चाताप नहीं किया और उसको ऐसा लगा नहीं कि इसको नहीं करना चाहिए। One who doesn't regret on his mistake and blame others are the one who are rebellion before God. और ऐसा व्यक्ति जो पश्चाताप नहीं करता अपनी गलतियों पर वही है जो बलवा करता है। Saul was spiritually blind. और सॉल जो था वो आत्मिक रीति से अंधा था। Many times when we have lot of things in our life, physically in the journey, we become blind, we become deaf to God's word. बहुत बार हमारे जीवन में हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो है जब हमारा शारीरिक जीवन, आर्थिक जीवन एकदम भरपूर से भरा हुआ होता है, उस वक्त हम परमेश्वर के लिए अंधे बन जाते हैं। परमेश्वर का वचन के लिए हम डेफ बन जाते हैं, हम बहरे बन जाते हैं। हम सुनना पसंद नहीं करते क्योंकि हमको लगता है कि हमने बहुत कुछ कमा लिया, अब हमको परमेश्वर की जरूरत नहीं है, अब हम सब कुछ खुद कर सकते हैं। That was the place where Saul had come in his life. Saul was spiritually blind. और सॉल जो था वो काफी आत्मिक रीति से अंधा हो गया था। He refused to listen and obey. और उसने सुनने के मना कर दिया सुनने से। Yes, God had definitely chosen him. परमेश्वर ने उसको चुना था। But let me tell you, he became a rebel. पर मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बलवा करने लग गया। Rebellion and disobedience from God keeps you away from God's blessing. और बलवा करना और परमेश्वर का नहीं सुनना वो परमेश्वर के आशीष से आपको दूर रखता है। Friends, the choices which you and I make reveal the condition of our heart. दोस्तों जो चुनाव आप और हम करते हैं वो आपके और हमारी जीवन की जो है नाजुकता बताते हैं। जो निर्णय हम लेते हैं मित्रों, उस निर्णय से हमारे हृदय की स्थिति पहचान में आती है। The heart condition has been seen by the choices which we take. और हमारे हृदय की परिस्थिति हमें पता चलती है जो चुनाव हम करते हैं उससे। And that will determine our physical and spiritual journey. और That will determine our physical and spiritual journey. और वो जो है हमारे शारीरिक और आत्मिक जीवन का निर्णय लेगा। You know, God would have forgiven Satan also. और आपको पता है परमेश्वर शैतान को भी क्षमा कर देता था। But he never regrets for his mistake. पर वो कभी अपने गलतियों पर पश्चाताप नहीं करता है। Till today he rebels against God. आज भी वो बलवा करता है परमेश्वर के खिलाफ। Today the Lord is telling to you. और परमेश्वर आज आपको कह रहा है। Today is the day where you have to take a step of faith. आज एक समय है आपको विश्वास का कदम उठाना है। Like Abraham, you have to set your eyes on the promises of God. और अब्राहम की तरह आपको परमेश्वर के
परमेश्वर की योजना पर अपनी दृष्टि लगानी है। Don't look what you have. और ये ना देखे आपके पास क्या है, Don't look what you ये have. ना देखे आपके पास क्या है, Just trust upon the Lord. और सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखे। With this last scripture we will end Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. और नीति वचन का 3रा अध्याय और 5वां और 6वां वचन। Trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. In all your ways submit to him and he will make your path straight. और Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. और 3रा अध्याय का 5वां और 6वां वचन। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। Yes, today the Lord is giving you altar call. और आज परमेश्वर जो है आपको एक बुलावट दे रहा है, Today God is calling you. और आज बुला रहा है। Can you say yes to Jesus क्या आप Christ? यीशु मसीह को हाँ कह सकते हो? Can you say yes as Abraham said yes to आप God? हाँ कह सकते हो जैसे अब्राहम ने हाँ कहा परमेश्वर को? Can you live like Abraham every past which entangles you? क्या आप जो है अब्राहम की तरह छोड़ सकते हो हर एक जो है भूतकाल की चीज जो आपको बांधे रखी हुई है? You cannot stop half the way. और आप आधे रास्ते नहीं रुक सकते। God has not called you for Haran. परमेश्वर ने आपको हरान के लिए नहीं बुलाया है। Don't think that you will decide और tomorrow. आप ये ना सोचे कि आप कल के लिए सोचेंगे। As you are hearing God's word right और now, जैसे आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हो अभी, I want you to raise your right both the hands if you are ready to say yes to Jesus मैं Christ. चाहता हूँ कि आप अपने दोनों हाथों को उठाएं अगर आप यीशु मसीह को हाँ कहने के लिए तैयार हो। Yes, those who have lifted their hands to Jesus, we are going to pray for them right और now. जिन्होंने अपने दोनों हाथों को उठाए यीशु मसीह के लिए, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। Yeah, life is a journey. जीवन एक यात्रा है। No problem if you have taken a wrong choice. कोई समस्या नहीं अगर आपने गलत निर्णय लिया तो। Just say to God, God, I made a mistake. और बस ये परमेश्वर को कहो कि मैंने गलती कर ली। Close all the doors which make the curse to enter into your और life. सारे दरवाजे को बंद कर दो जो आपके जीवन में श्राप को ला रहा है। Every door which has been opened by the sin needs to be closed. और हर एक दरवाजा जो पाप के द्वारा खुलता है हम उसे बंद करते हैं। Don't compromise with God's और promises. परमेश्वर के वादों से आप जो है कॉम्प्रोमाइज ना करें। Today the Lord is giving you a chance. परमेश्वर आपको एक आज मौका दे रहा है। We don't know when our journey will end. और आपको नहीं सॉरी We don't know when our journey will end. और आपको नहीं पता हमारा आपका जो यात्रा है वो कब अंत होगा। Just raise both of your सिर्फ hands. अपने दोनों हाथों को उठाए And as we are going to pray, और हम प्रार्थना करेंगे। Father in heaven, we just want to thank you for every person who has lifted their hands. परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं हर एक व्यक्ति के लिए जिसने अपने हाथों को उठाया है। Lord, I pray in the name of Jesus मैं Christ प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम that से Lord, you have revealed your promises unto कि them. परमेश्वर तू अपने वादों को उनको दिखा, That they know, God, you have a plan for them which you mentioned in Jeremiah chapter 29 and verse 11. परमेश्वर वो जान पाए कि तेरे पास एक योजना है उनके लिए कि तूने जो यिर्मयाह 29वां अध्याय 11 वचन में लिखा है। Lord, that they know before they were conceived in the womb of their mother, Lord, you knew them when they were unformed in the womb. और परमेश्वर वो जान पाए कि तू परमेश्वर उनको जानता था Lord bless you, और प्रभु आपको आशीष दे keep you. और आपको संभाले रखे। May the Lord make his face shine upon और you प्रभु अपना जो चेहरा है वो आपके ऊपर चमकाए and be gracious unto और you. आप पर अनुग्रह बरसाए May the Lord countenance fell upon you और परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर गिरे and give you peace. और आपको शांति दे। Shalom. शालोम। Amen and amen. आमीन। If you have got the word, और वापस बोलो। if you have received the word, और अगर आपको जो है विश्वास और अगर आपको जो है अगर आपने वचन को ग्रहण किया है तो मैं ये विश्वास करता हूं कि चमत्कार आपके पास है।
अगर परमेश्वर ने आपको छू लिया है तो हमारा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, आप अपनी गवाही को इस मोबाइल नंबर पे जरूर भेजिए। अगर आप इस सेविकाई के लिए कुछ देना चाहते हैं तो हमारा अकाउंट डिटेल्स भी अभी नीचे आ रहा है। हम विश्वास करते हैं कि ये वचन आपके लिए लाभदायक था। धन्यवाद। अगले इतवार फिर मिलेंगे।